Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope you all will be fine. Okay student, have you remember what we did in our previous lesson? Yes, who will tell me what we did in our previous lesson? We did in our previous lesson words, sentences, students, we did word sentences on notebooks, and I have gave you the diary of learn word sentences. Also, have you learned it? Yes, who will tell me who has learned it as well? Okay students, I am revising word sentences. Open your notebooks of English and revise first. Tally your word sentences with me. Put your fingers on your notebooks. Our first word was embarrassed. Embarrassed, the animal felt really embarrassed. Number 2, errands. I do my errands. Rescued, I rescued a cat. Brave, I am very brave. Teased, the animal teased the bunny. These were the sentences I have given you, and you have to write on your notebooks as well. Okay students, now we will continue our next lecture, that is lecture number 7. As you know, today the date is June 7 and the day is Thursday. Before starting our next lecture, as you remember, I have given you some spoken sentences. Are you practicing it in your daily routine? Honestly tell me, who has practiced these spoken sentences in their daily routine? If you are practicing it, it's very good. Keep going on. I'm giving you more 2 sentences and write it on your diaries as well, so it will be easier for you to practice it in your daily routine. The first spoken sentence is Can you see it clearly? The first sentence is words going on. The first sentence is words going on. If I'm asking from anybody, what are you doing? Then I can simply use this sentence, what's going on. For example, अगर मेरे सामने मेरा कोई भी फेलो बैठा हो और मैंने उससे पूछना हो कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं सिंपली कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, मतलब ये वाला सेंटेंस बोल सकती हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या है ये सेंटेंस, व्हाट्स गोइंग ऑन. या हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग. ये सेंटेंस बहुत थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप जो है ये सिंपल सा सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है, यूज़ इट इन योर डेली रूटीन. दिस इज़ वेरी सिंपल. द सेकेंड इज़ व्हाट्स योर नेम. आपने मोस्ट कॉमन ये लाइन सुनी होगी, तो ये आप अपने डेली रूटीन में यूज़ भी करते होंगे. सो स्टूडेंट्स, these are very simple sentences. Use it in your daily routine as well. I'm again repeating. Number first sentence is what's going on, and the second one is what's your name. Today, first of all,
open your notebooks of English. Write date on the right side of the page, June 3, 2021. In the center write class work, and on the left side write Thursday. Today the date is June 3. Okay, the topic is topic. Today our topic is words, opposites and similar. आज जो हमने करना उसमें हमने ये करना है कि हमें वर्ड्स दिए गए होंगे, उसके हमने क्या राइट करना है, ऑपोजिट्स राइट करना है। ऑपोजिट किसको कहते हैं? कोई भी एक वर्ड, जैसे डे है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नाइट होगा। मतलब उलट बता देना। अगर लॉन्ग मतलब टॉल है, कोई लंबा है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट मतलब छोटा। हमने ऑपोजिट लिखने हैं, लाइक डे है तो नाइट है, ठीक है। अप है ऊपर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डाउन होगा। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनके हम ऑपोजिट राइट कर सकते हैं। तो सिमिलर वो वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे हम वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं, वर्ड्स मीनिंग में हम वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि सेम होते हैं, तो वर्ड्स के हम इंग्लिश में मीनिंग भी वही राइट करते हैं। सही है ना? मतलब मीनिंग सेम हो बट वर्ड जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे कि हमने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखे हैं। फर्स्ट जो था वो था शाय। शाय का मतलब था शर्मीला, और इसी तरह हमने इसका मीनिंग लिखा था ठिमिड। ठिमिड का मतलब भी शर्मीला ही था। तो मतलब वर्ड्स जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो सेम है। इसको हम कहेंगे वर्ड्स सिमिलर, और वर्ड्स ऑपोजिट हम उसके जो है उलट बनाएंगे, मतलब उलट चीज़ें लिखेंगे, वो होंगे। अब इसमें वर्ड्स जो है वो एक ही होंगे, मतलब वर्ड्स एक होगा लेकिन उसका हमने ऑपोजिट भी लिखना है और सिमिलर भी राइट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन हमने 2 ड्रॉ करनी है, इस तरह करनी है कि हमारा जो है वो पूरा आ जाए। एक सिमिलर के लिए, एक वर्ड्स के लिए, सेंटर में हमने वर्ड्स के लिए छोड़नी है जगह, और साइड पे हमने ऑपोजिट्स के लिए जो है वो लाइन लगानी है। इस तरह लाइंस लगा लेनी है आपने, 2 लाइन सेंटर में, इतनी लगानी है जिसमें आपके वर्ड्स जो है वो पूरे आ सकें। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखने हैं वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करने हैं ऑपोजिट्स। and here you will write the similar. Okay, in first block you will write words, in the second you will write opposite, and in the third you will write similar. After that I am writing here words. The first word is, mention the numbering here also. फेमिलियर। फेमिलियर का क्या मतलब था? ये हमने वर्ड्स मीनिंग में भी किया है, अगर आपको याद हो तो। इसका क्या मीनिंग था? फेमिलियर का मीनिंग था जिसको हम जानते हो, जान पहचान वाला, ठीक है।
जिसको हम जानते हों। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा जिसको हम नहीं जानते? क्या होगा जिसको हम नहीं जानते? अननोन। क्या है? अननोन। फेमिलियर ऑपोजिट अननोन, जिसको हम जानते हैं जिसको हम नहीं जानते। अब हमने सिमिलर में क्या राइट करना है? सेम इसके जैसा, फेमिलियर जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा सिमिलर? नाउन। क्या होगा? नाउन। अगेन आई एम रिपीटिंग, फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है जान पहचान। इसका ऑपोजिट हमने राइट किया अननाउन, जिसको हम ना जानते हो, और इसका सिमिलर होगा नाउन, ठीक है। अब सेकंड वर्ड हम राइट करने लगे। नोटिस। द सेकंड वर्ड इज़ नोटिस। अब नोटिस का मतलब किसी पे गौर करना, ठीक है, या गौर से देखना किसी को। अब मैं आपको, कोई भी बच्चा अगर वर्क ना कर रहा हो तो मैं अगर कहूँ कि आई एम नोटिसिंग यू, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, मतलब मैं आपको देख रही हूँ। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? मतलब एक मैं आपको देख रही हूँ और दूसरा मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इग्नोर। क्या होगा इसका ऑपोजिट? इग्नोर। क्या होगा? इग्नोर। और इसका सिमिलर क्या होगा? ऑब्जर्व। मतलब नोटिस गौर करना, इग्नोर गौर ना करना, ना देखना। ऑब्जर्व अगेन सिमिलर वही बात होगी, गौर से देखना या नज़र रखना, ठीक है। सेकंड है नोटिस, उसका ऑपोजिट हमने राइट किया इग्नोर, सिमिलर ऑब्जर्व। नाउ द थर्ड वन इज हेरोइक। हीरोइक हम हीरो भी तो कहते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, ठीक है, जो हमारी नज़र में हीरो होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो लड़ाई वगैरह दुश्मनों के साथ करते हैं, तो हमारी नज़र में क्या आते हैं? वो हीरो होते हैं। क्या होते हैं? हीरो, हीरोइक। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा कॉवर्ड। COWARD, कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है बुज़दिल, ठीक है। एक बहादुर है तो दूसरा क्या होगा? उसका उलट क्या होगा? बुज़दिल। अब इसका हमने सिमिलर क्या राइट करना है? स्टूडेंट जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सिमिलर में और ऑपोजिट्स में। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इसको हम छोड़ दें, सिमिलर को वर्ड्स ऑपोजिट अकेला याद करें, ठीक है। उसके बाद आप इन ऑपोजिट्स को छोड़ दें और वर्ड्स और सिमिलर को अकेला याद करें, ठीक है। इस तरह इकट्ठे याद नहीं करना आपने, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ वन है अनश्योर, गैर यकीनी। अनश्योर, गैर यकीनी। नंबर 4 इज़ अनश्योर, गैर यकीनी, मतलब जिस पे यकीन ना हो, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? मतलब एक चीज़ जिस पे यकीन ना हो तो दूसरा ऑटोमेटिक वही होगा कि जिस पे यकीन हो, श्योर। क्या होगा? श्योर। अनश्योर, opposite is sure. Now the similar is hesitate.
हिचकिचाना, जिसके बारे में ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ हमें नहीं पता होती तो उसके बारे में हम थोड़ा हिचकिचाते हैं बात करते हुए कि हम इसकी बात करें या ना करें। तो अनश्योर, गैर यकीनी, जिस पे हमें यकीन ना हो। हेजिटेट का मतलब यही होता है हिचकिचाहट होना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? श्योर, जिस पे हमें यकीन होता है, जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये है चीज़। ठीक है। नंबर 5 इज़ क्रूअल। नंबर 5 इज़ क्रूअल, जालिम, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जालिम। नंबर 5 इज़ क्रूअल, जालिम। इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो अच्छा इंसान होता है, काइंड। क्रूअल, जालिम, काइंड, जो अच्छा इंसान हो। इसका ऑपोजिट तो हमने लिख दिया। अब इसका जो सिमिलर है वो क्या होगा? अनकाइंड। इसका क्या होगा ऑपोजिट? अनकाइंड। नंबर 5 इज़ क्रूअल, ऑपोजिट काइंड, सिमिलर अनकाइंड। ठीक है। अगेन मैं रिपीट करने लगी हूँ इनको, अब इनको गौर से देखें। Here I have written the date, that is June 3, 2021. In the center I have written class work, and here I have written day, that is Thursday. On the second line of the page I have written topic, words, opposites and similar. After that I have drawn here 2 lines in the center of the page, words, opposites and सिमिलर। ऑपोजिट जो है वो मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि ऑपोजिट वो होते हैं जो कि उलट होते हैं। लाइक डे है तो नाइट होगी, टॉल है तो शॉर्ट होगा, फैट है तो स्लिम होगा, स्मार्ट होगा। ठीक है। इसी तरह अगर सिमिलर है तो सिमिलर क्या होगा? जो एक जैसा हो, जैसे हम वर्ड्स मीनिंग राइट करते हैं। अब फर्स्ट वर्ड है हमारा फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं। इसका ऑपोजिट जिसको हम नहीं जानते, अननोन। सिमिलर में वही आएगा जो सेम होगा जिसको हम जानते हैं, नोन। अब मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपको ये याद करने में डिफ़िकल्टी होती है तो हमने क्या करना है? हमने इसको छुपा लेना, मतलब इस चीज़ को हमने इग्नोर कर लेना। हमने पहले सिमिलर याद कर देना है, उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे तो हम इसको ऑपोजिट को याद कर लेंगे। ठीक है। एक साथ नहीं याद करना। नंबर 2 नोटिस, गौर करना। ऑपोजिट जिसको इग्नोर करना, मतलब देखना ही ना। सिमिलर, ऑब्जर्व, जिस पे गौर करना। सिमिलर में वो वर्ड आएंगे जो कि सेम होंगे। नंबर 3 हीरोइक। हीरो मतलब अच्छी पावर वाला, जो अच्छा इंसान होता है। कॉवर्ड, बुज़दिल, ब्रेव, बहादुर। नंबर 4 अनश्योर, गैर यकीनी। श्योर, जिस पे यकीन हो। हेजिटेट, जिसकी हिचकिचाहट हो, मतलब अनश्योर, गैर यकीनी। क्रूअल, जालिम, ऑपोजिट काइंड, एंड सिमिलर इज़ अनकाइंड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें मुझे ये फुल उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आप इसको लर्न करेंगे सेपरेट। ठीक है। एक साथ इसको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना। सो आई एम राइटिंग हियर योर डायरी। learn plus write। similar, okay, your today's diary is learn plus write word similar, opposites on English notebook in very neat writing. I'm again repeating the spoken sentence also. What's going on, and the second one is what's your name. Students, write it in very neat writing.
वर्ड्स जो है वो बिल्कुल आपने सीधे 4 लाइनों में राइट करने हैं, कोई आपने डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाना, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी करना है और लिखना भी है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।